बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 77, रिटन वर्क नंबर 10, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हम राइट करेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले जो हमने 4 क्वेश्चंस लिखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। Why an atom is considered as neutral particle? Give reason. ये रीज़न वाला क्वेश्चन है। क्लियर? स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट की हेडिंग दे दें। स्टेटमेंट के बाद आप लिखिए एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। स्टेटमेंट की हेडिंग दे दी। अब इस लिखे एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। अब हेडिंग दे दी रीज़न की। रीज़न की हेडिंग दे दी एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. The number of proton and electron in an atom is equal. Equal को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. The number of neutron does not affect the neutrality of atom as magnitude of charge of electron and proton is equal. यहाँ पे मैग्नीट्यूड और इक्वल को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. क्लियर? Opposite. They cancel the effect of each other and there is no charge on atom. अब conclusion की heading दे दे atom is identically neutral. conclusion की heading दे दे और लिखे atom is identically neutral. अब question number 6 की heading दे दे the mass of an atom is present in its nucleus. Can you explain it? The mass of an atom is present in its nucleus. Can you explain it? अब आप स्टेटमेंट की हेडिंग दे दे मास मोस्ट ऑफ द मास इन एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. स्टेटमेंट दे दी. अब इसके बाद रीज़न की हेडिंग दे दे. रीज़न की हेडिंग दे दी. अब उसके बाद most of the mass of an atom is present in the nucleus, which is made of proton and neutron. The proton and neutron are the heaviest of the 3 types of subatomic particles, whereas the electron are nearly weightless. यहाँ पे आप heaviest को black marker से highlight करें. The majority of the mass is considered in the nucleus. Rutherford fixed the alpha particles at a target made up of gold foil. After striking, the alpha particles were depicted as a small flashes on a fluorescent screen. Found that most of alpha particles pass through the gold foil as a small number of alpha particles bounce back through straight lines. More than 99.99% of alpha particles pass through the foil. He worked out that the diameter of the nucleus were 1000 times smaller than the diameter of the atom. Rutherford considered that most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. Clear? समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. What is the reason that physical properties of the isotope are different but the chemical properties are the same? Statement लिखे शाबाश. What is the statement? Physical properties of the isotope are different but their chemical properties are the same. Statement लिखी. अब इसके बाद आप रीज़न की हेडिंग दे दें. रीज़न की हेडिंग के बाद आप लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइसोटोप आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द सेम. डिफरेंट और सेम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. बिकॉज आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर. डिफरेंट और सेम को फिर ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. बिकॉज इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और केमिकल रिएक्शन को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें.
while physical properties are concerned with atomic masses. यहाँ पे physical properties को आप black marker से highlight करें. Physical properties such as boiling point, melting point, density, etc. change with changes in atomic masses. For example, there are 3 isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium, 1H1, 1H2 and 1H3. इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल इज़ 1 को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. वाइल एटॉमिक मासेस आर 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली. 1, 2, 3 को भी आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. All the 3 isotopes have same chemical properties but different physical properties. Is it clear? अब डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें. क्वेश्चन नंबर 8. Draw the structure of carbon isotope, then write down its number of protons, neutrons and electrons. अब आप हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स. अब इसके बाद फिर आप हेडिंग दे दें कार्बन 12. कार्बन 12. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6. अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप इसकी ड्रा करेंगे तो आप न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन लिखे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. ये ऑलरेडी कार्बन ऑफ आइसोटोप में हम एक्सप्लेन करवा भी चुके हैं. नो नेक्स्ट वन दैट इज कार्बन 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7. अब न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन लिखे और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करें. क्लियर? नाउ कार्बन 14. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8. अब आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. शेल नंबर सबके सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है. यहाँ पे न्यूक्लियस में आप 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मेंशन करें. दैट इज़ कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. कार्बन 12, 13 एंड 14. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम क्वेश्चन कार्बन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में एक्सप्लेन करवा चुके हैं. अगर आपको उसकी समझ नहीं आई तो आपके बुक पेज नंबर 54 पे टेबल 2.7 में आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, वो टेबल आप बना सकते हैं. वो ऑलरेडी दिया गया है प्रॉपर तरीके से. आप उसी बुक से भी बना सकते हैं. अगर नोट्स की समझ नहीं आती तो आप टेबल 2.7 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बुक पेज नंबर 54 से भी बना सकते हैं. क्लियर?